کیا ہوا چھجو؟ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ کہاں رہ گئے تھے؟ ہماری تو حویلی اجڑ گئی، مرنے دیتے بجنور میں فرنگیوں کو۔ دیکھیے ظالموں نے ہمارے آدمی کی کیا حالت کی ہے، کیا حالت کی ہے۔ ہاں چھجو، میں بجنور میں صدر امین بنا تھا، یہ سوچ کر فرنگیوں کی جانیں بچاتا رہا کہ شاید میرے اپنے لوگوں کے حق میں ان کے ظلم کے ہاتھ نرم پڑ جائیں۔ کسی نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا تو سید احمد خان، ان دھوکے باز فرنگیوں کا ساتھ مت دو، بد عہد ہیں یہ لوگ، اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اپنے قانونی حقوق کے پرخچے خود اڑا چکی ہے۔ ہمارے مغل بادشاہ نے کمپنی کو صرف اڑیسہ، بہار اور بنگال میں کمپنی کے دیوانی ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی تھی، مگر نمک حرام ہے یہ فرنگی، اور ہم انہیں کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سید احمد خان، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ اپنے ملک سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر ان چند فرنگیوں کو ہندوستان کے خلاف سازشیں اور نمک حرامیاں کرنے کی اجازت کس نے دی ہے نواب صاحب؟ ہم نے، ہم ہندوستانیوں نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش بھی کی ہے؟ عقل سے کام لیجئے خان صاحب، میں اور میرے ساتھی جتنے یہاں پر موجود ہیں صرف آپ کے احترام میں صبر سے کام لے رہے ہیں، اور اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ سید احمد خان، مسٹر ترابلی، پلیز کال سید احمد خان۔ نہیں سر، وہ مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دس از مائی آرڈر، اور جو کچھ میں بولا وہ آپ جا کر سید احمد خان کو بھی بولو۔ جاؤ، بہتر، کوئک، ہری اپ۔ خبردار کسی نے بھی ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کو سید احمد کی لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ کلکٹر صاحب نے نواب ندیم آباد کے حق میں فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ ضلع بجنور سے دستبردار ہو جائیں، لہذا آپ اور نواب صاحب اندر تشریف لے چلیں گا چیری میں۔ کلکٹر صاحب کا فیصلہ اپنی جگہ، جب تک نواب محمود خان صاحب یورپین اسٹاف اور ان کے اہل خانہ کو حفاظت کی ضمانت نہیں دیں گے، میں یہاں سے ایک قدم نہیں ہٹوں گا۔ ٹھیک ہے سید احمد خان، میں آپ کو ان تمام فرنگی اور ان کے اہل خانہ کی جانوں کی ضمانت دیتا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کو کیمپ میں واپس جانے کا حکم دیتا ہوں۔ آپ تمام لوگ کیمپوں میں واپس جائیے۔
صاحبزادے دربار برخواست ہو چکا ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے. دربار سے اٹھ کر تسبیح خانے جائیں گے اعلیٰ حضرت، وہیں مل لیں گے ہم ان سے. میر متقی کے صاحبزادے ہیں، انہیں جانے دیجیے. یہ تو آتے ہی رہتے ہیں. آئیے صاحبزادے تشریف لے آئیے. بادشاہ سلامت تسبیح خانے تشریف لے جا رہے ہیں. حضور، میر صاحب کے چھوٹے صاحبزادے تشریف لے آئے ہیں. ابا حضور، آپ تشریف رکھیے. آپ کے چھوٹے صاحبزادے اب تشریف لائے ہیں. محمد بھائی، چلو کارنش بجا لو. بیٹا کورنش بجا لاؤ. عمر دراز. قریب آؤ بیٹے. بڑے آدمی بننا چاہتے ہو؟ اپنے نانا جان امیر الدولہ امین الملک خواجہ فرید الدین خان بہادر مسلح جنگ اور اپنے والد محترم میر متقی جواد الدولہ کی طرح. تو بیٹا بہت سویرے اٹھا کرو. اعلیٰ حضرت دیر سے آنکھ کھلی، ابا جان اور بھائی صاحب مجھے حویلی سوتا چھوڑا ہے. مسٹر میر متقی، کنگریچولیشن. تمہارا بیٹا بہت نیڈر ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے. کون جانتا تھا کہ 1817 میں پیدا ہونے والا یہ مسلمان بچہ جو بڑا ہو کر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے تعلیمی، اخلاقی، سماجی اور سیاسی تحفظ کے لیے زوال کے سیلاب کا رخ موڑ دے گا. میاں ہیملٹن صاحب آئے. جو کچھ ہوا مسٹر سید احمد خان، مجھے بہت افسوس ہے. میں معافی بھی چاہتا ہے. آپ کا مادر کا کچھ پتہ چلا؟ طرح بیرم خان کے 10-20 لوگ زندہ بچے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے پرانی ملازمہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا. اماں جان فکر مت کریں سید خان، میں پوری کوشش کرے گا کہ آپ کا مادر کو بھی ڈھونڈے اور آپ کا یہ حویلی بھی ٹھیک رہے. Well, I'm extremely sorry for that. اماں جان پانی لیجیے. پانی. کون؟ پانی. 3 دن سے پیاسی ہیں آپ. ایک گھٹ سے زیادہ پانی نہیں پینے دوں گا اماں جان میں آپ کو. فخر کو پلا دو. خالہ جان کو یکے میں سوار کر دیا ہے. آپ ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کیجیے اماں جان. صدقے جائے عزیزہ اپنے بیٹے پر. پہلے بھائی کا غم کیا تو ایسا کہ 15 دن بعد ماں نے جب صورت دیکھی تو چہرے پر داڑھی تھی. اور اب ہندوستان کا غم کیا تو ایسا کہ چہرے اور داڑھی سب کے بال سفید ہونے لگے. کوئی غم نہیں رہا امی جان، آپ مل گئیں. چلیے حویلی چلتے ہیں. نہیں، میں حویلی نہیں جاؤں گی. گھر نہیں جائیں گے امی جان آپ؟ ایسا کرو تم مجھے سیدہ اور بچوں کے پاس پہنچا دو. میرٹھ جائیں گی آپ؟ ہاں. امی جان ہیملٹن صاحب ابھی ہماری حویلی درست کرا رہے ہیں. ارے کون سی حویلی، کیسی حویلی جس کی گز گز بھر چوڑی یہ دیواریں ایک بوڑھی عورت کی حفاظت نہ کر سکی؟ میں ان دیواروں میں جا کر بیٹھوں؟ نہیں،
छज्जू जी जरा जेबुन को बुलाओ। जी वो पानी की तलाश में पता नहीं कहाँ निकल गई। जेबुन अब दुनिया में नहीं रही अम्मा जान। क्या? हाय अल्लाह प्यासी ही मर गई। किले गया था पानी लेने, पहले लाके उसी जेबुन को ही पिलाया था मैंने। मियाँ अम्मा को हकीम एहसानुल्लाह खान साहब के पास ले चलें? छज्जू पहले गद्दार समझ के बादशाह सलामत नाराज थे हकीम चचा से। बादशाह सलामत गिरफ्तार हो गए तो फरंगियों को उन पर भरोसा नहीं रहा। न जाने कहाँ होंगे हकीम चचा। तो यहाँ क्या बैठे हो, जाओ जाकर हकीम साहब को तलाश करो। बेहतर है जो हुक्म अम्मा जान, मैं अभी जाके तलाश करता हूँ चचा जान को। हाँ जाओ। आपके वालिद मीर मुत्तकी मरहूम हमारे लिए मिसले बिरादर थे। खिलत हम खुद पे नहीं। इस नौमरी में इंतखाबुल अखवीन और आसारुल सनादीद जैसी मार्कतुल आरा किताबें तहरीर कर देने पर तुम बजा तौर पर इनाम के मुस्तहिक हो सैयद अहमद। यही वो इकबाल का मर्द मोमिन है जिसकी बसीरत से कौमों की तकदीर बदल जाती है। लेकिन बदकिस्मती से बाज अपने ही लोग इन्हें फरंगी का दोस्त समझकर इस हद तक नफरत करते थे कि दुश्मन जानो ईमान समझते थे। ये सैयद अहमद खान हैं। इनकी पहचान आज बर्र सगीर पाक व हिंद में बसने वाला हर मुसलमान है। आज दुनिया के जदीद उलूम के तालिब इल्म और साइंस और टेक्नोलॉजी की कदावर शख्सियात सब इन्हीं के मरहून मिन्नत हैं। सर सैयद अहमद खान न तो वतन फरोश थे और न ही ईमान फरोश। एक खरे और सच्चे मुसलमान थे जो अपनों के आशिक तो थे ही, लेकिन वो कौम की खातिर दुश्मन से निभाने का हुनर भी खूब जानते थे। गुजर गई पूरी एक सदी, ये बेमिसाल इंसान जिसने मुगल सल्तनत को अपनी आंखों से उजड़ते देखा, मुसलमानों को बर्बाद होते देखा। जवादुद्दौला आरिफ जंग दादा के खिताब के अलावा भी तुम्हारे बहुत से हक है हम पर सैयद अहमद। आरिफ जंग हो अब तुम हमारे। मगर फिर अपनी बकिया जिंदगी का एक लम्हा जाया किए बगैर ऐसा कुछ कर गया कि आज बर्र सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को 21वीं सदी के दरवाजे तक बामुरादो कामरान इंसानों की सूरत में पहुंचा गया। ये बहुत अच्छा किया आपने। देखिए ना अंधेरा होता चला जा रहा है। अंधेरे उजाले का मियाँ से क्या मतलब, ये तो बस लिखाई पढ़ाई है और ये है। छज्जू, सैयद साहब को तो हिंदुस्तानियों की रुसवाई और बेबसी का गम खाया चला जाता है। सैयदा बीबी, गम तो हम जैसे अनपढ़ों को भी है, मगर मियाँ को इससे क्या मतलब। ये तो बस हिंदुस्तानियों की बेबसी के मौसम को तब्दील करने की फिक्र में है, और इस फिक्र में है कि अंग्रेज को ठीक करके ही दम लेंगे और किताबों पर किताबें लिखेंगे बस। अच्छा अब आप ऐसा कीजिए जी,
ابراہیم نے یخنی بنا لی ہوگی. ٹھیک. ذرا وہ لے آئیے. کمال ہے، اتنی کم روشنی میں آپ کیسے کام کر لیتے ہیں؟ بھائی سیدہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دلی واپس آ کر اپنی حویلی میں رہ سکوں گا. آپ جیسی بہادر خاتون ساتھ نہ ہوتی تو شاید حویلی میں واپس آ پاتا. ایسے سید صاحب، اب ایسا بھی نہیں ہے. کون گا رہا ہے؟ میرے خیال سے لکھی گا رہی ہے. بھی کیا خوبصورت آواز پائی ہے اس نے. مکھندیا کہار کی بیٹی؟ ہاں ہاں وہی. ارے تو روئے ہے کا گائے ہے. بسنت کے دنوں میں یہ رونے دھونے کے گیت گاوے گی نا تو یہ گنڈے فرنگی تجھے دھر کے لے جاویں گے. ہاں ارے لے جاویں، چڑھا دے سولی ہم کو. ارے جب ہماری بیگم ہی حویلی میں نہ رہی تو یہ لکھی جی کر کیا کرے گی. بن سکتا ہے ہندوستان آج بھی کہانیوں جیسی حسین تر محبوبہ جس کے چہرے کی دو خوبصورت آنکھیں ہندو اور مسلمان کہے جا سکتے ہیں. خدا کرے وہ دونوں قائم رہے. لیکن یہ تو بتائیے رسالے کا کام کہاں تک پہنچا؟ بس تیار سمجھے، انگریزی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کراتا جا رہا ہوں. یہ یخنی اور یہ بجنور سے تار آیا ہے. لیجیے آ گیا بلاوا الیگزینڈر شیکسپیئر صاحب کا. اچھا تو پہنچ گئے یہ بجنور. Good, Mr. Palmer. It's a good progress. Oh, no doubt. سید احمد آ گیا ہے. Oh, بلاؤ فوراً بلاؤ. سید احمد خان. جی کلکٹر صاحب. Oh, he's so white, even brain white. خون سفید نہیں ہوا ہے. بٹ ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں تو پھر سمجھیے آپ جیسے گوروں کی محبت میں سفید ہو گیا. Look at his beard and hair, sir. آپ کی حکومت میں جو نہ ہو کم ہے. وقت کی دھوپ نے سید احمد کی گوری رنگت کو جھلسا کر سرمئی کر دیا ہے اور سیاہ بال سفید. Oh, my friend. Surprising. Better, please. آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک معذور بادشاہ کا پرانا نمکخوار نئے شاہی نمائندوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. Oh, no, Mr. Syed. Right now, neither we are representing our country nor you are our employee. We are just friends here, don't you? Yes, we are friends. And congratulations, آپ کا پروموشن ہوا ہے. آپ وہ کیا بولتا ہے صدر الصدور یعنی سینئر جج بنا کر مراد آباد بھیجا جا رہا ہے.
शुक्रिया, ममनून हूं आपकी गवर्नमेंट का और आपका। आपने हमारा बहुत हेल्प किया है, आप इस इनाम का मुस्तहिक है। ये क्या? ये आपका गिफ्ट है। जहांबाद और मेरी जागी, रईस जहांबाद मीर सादिक अली और रुस्तम अली की जागीर बगावत के जुर्म में जब्त करके बतौर इनाम सैयद अहमद को दी जाएगी। मैं मुर्दाखोर जानवर नहीं हूं शेक्सपियर साहब। अपने हम वतन हम मजहब मुसलमान भाई बगावत के जुर्म में मारे जाएं, मुजरिम कहलाएं, तख्ते-ए-दार पर चढ़ें, जेलों में सजाएं काटें और मैं उनकी जायदादों पर कब्जा कर लूं? नामुमकिन। सैयद अहमद खान, जब कोई गवर्नमेंट किसी से कोई चीज छीनता है तो वो प्रॉपर्टी उस फर्द का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का हो जाता है। अब तो कानून को समझता है, प्लीज। कमाल है, आप मुझे समझे ही नहीं। अरे मैंने तो आपसे ये शिकायत भी नहीं करी कि बगावत के इल्जाम लगाने में आपके हाकिमों से कैसी कैसी फाश गलतियां हुई हैं, शरीफ मुसलमानों के साथ कैसे कैसे मजालिम रवा रखे गए हैं। मैं अपनी मोहतरम मां को दफना कर आया हूं यहां बिजनौर। मेरी वालदा जिन्होंने कभी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाया था, जिन्होंने कभी हवेली की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा था, वो आपकी फौज के मजालिम से बचने के लिए दिल्ली की सड़कों पर परेशान और खंडर में पनाह ढूंढती रहीं, फाके किए, प्यासी रहीं, मर गई मेरी वालदा कलेक्टर साहब, मर गई। किसी को बद्दुआ नहीं दी। मैं उस मां का बेटा हूं। एक मजलूम मुसलमान की जायदाद पे कैसे कब्जा कर लूं, कैसे पी लूं अपने मुसलमान भाई का खून? आई एम सॉरी कलेक्टर साहब, आई एम सॉरी। मैं अपनी सजा सुनकर जज्बाती हो गया था कलेक्टर साहब। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा है, आप बहुत ऑनेस्ट इंसान है। आमिर साहब, आइंदा मुझे आप कोई ऐसा तोहफा न दीजिए। अगर देना ही है तो मुझे मुरादाबाद जाने की इजाजत दीजिए ताकि मैं वहां जाकर वो किताब छपवा सकूं जिससे ये साबित हो सके कि अंग्रेज सरकार जिस हादसे को बगावत हिंद का नाम देकर हमें मुजरिम समझ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों की नाराजगी थी, गलत फहमी थी। So you see, Mr. Syed, we do agree with you that we did a great blunder, but situation has definitely been mishandled, sir. सैयद अहमद, आप जरूर लिखो ये किताब, इसको छपवाओ और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर कर तमाम पार्लियामेंट्रियन को भेजो। इस सिलसिले में मैं आपका पूरा हेल्प करेगा। मैं मुरादाबाद में मदरसा खोलूंगा। Sure. मियां, हम आपसे बहुत नाराज हैं। मुरादाबाद पहुंचकर तो जैसे सारे हिंदुस्तान के काम आपने अपने ऊपर ओढ़ लिए हैं। दिन तो चलिए काम का है, रात में भी आराम नहीं करते। 1.5 बरस हो गया है आपको इसी तरह। तुम अकेले तो ठेकेदार नहीं हो सैयद मियां, पूरे हिंदुस्तानियों को सुधारने के। आपा, मैं तो वक्त पे खाना खाने की बात करती हूँ। ठीक है, कहत के इन हालात में मुरादाबाद वालों पे क्या गुजरती होगी। हाय, मैं तो समझती हूँ भूख तो एक तरफ, सही बात, वहां तो जिंदा रहना भी मुहाल होगा। लेकिन आपा, इंसान को काम करने के लिए ताकत की तो जरूरत होती है। जब तो मैं कहती हूँ वक्त पे खाना खा लिया कीजिए। सैयद अहमद को तो काम ओढ़ लेने का शौक है,
अरे बंदे खुदा, अभी कहत की मुसीबत से निजात मिली नहीं है और ये चले हैं मुरादाबाद में उर्दू अंग्रेजी मदरसा खोलने के चक्कर में, और वहाँ बातें हो रही हैं हिंदी और देवनागरी रस्मुल खत की, और फरंगी ईसाई मजहब मुसल्लत करना चाहता है, और ये चले हैं उर्दू अंग्रेजी का झंडा लेकर। अरे जवाब नहीं दोगे मुझे क्या? आपा, आप लोग जो कुछ कह रही हैं मेरी मोहब्बत में कह रही हैं। मैं तो दुश्मनी करने वालों को भी जवाब नहीं देता। जितनी देर जवाब देने और सोचने में लगाऊं, इतनी देर में कोई और भलाई की बात क्यों ना सोच लूं। अल्लाह का शुक्र है कहत की मुसीबत कम हो गई है। जॉन स्ट्रेची कमिश्नर मुरादाबाद के हुक्म पर शुमाली मगरबी हिंदुस्तान के शहरों के कई अफसरान कहत का इंतजाम देखने के लिए आए हुए हैं। देखो सैयद अहमद, अब वक्त बदल गया है। अब ना हम रईस हैं, ना जागीरदार हैं, ना हिंदुस्तान के शहंशाह की पुष्पनाही हासिल है हमें। जबान के मामले में दो मुँह अजदहे के बिल में हाथ डालना इस वक्त अक्लमंदी नहीं होगी। सैयद अहमद, तुम इस सियासत से दूर ही रहो तो अच्छा है। आपा, हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुस्तान का हर बाशऊर इंसान मेरी तरह सोच रहा है। आपको पता है दिल्ली के कुतुब खाने जलाए गए और बर्बाद किए गए तो पंजाब के बेशुमार जमींदार, राजे, सिख, मुसलमान, हिंदू यहां से किताबों के खजाने उठाकर ले गए हैं पंजाब। ये शऊरी कोशिशें हैं अच्छे लोगों की। बहुत से लोग हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। मियां, वो मोहन, इंशाअल्लाह हमारी ये दोस्ती मिसाली रहेगी। मोहन बाबू जी सरकार। मोहताज खानों में आप हमारा इतना हाथ बटाते हैं, ये क्या कम बात नहीं। आज आपने सैयद अहमद को एक मिसाली और खरा दोस्त दे दिया। कैसे चुकाएंगे हम आपका एहसान? हुजूर, मैं 1 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, जानता हूँ आप कितने बड़े इंसान हैं। धन्यवाद सैयद साहब। मियां, 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 सैयदा साहिबा की ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। राजा साहब, माजरत चाहता हूँ। कोई खिदमत नहीं, शुक्रिया। मोहन बाबू हैं, ले आएंगे सिविल सर्जन को जाकर। जी शुक्रिया। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सैयद साहब, आप बड़ी बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मेरा रब मुझे थोड़ी सी जिंदगी और दे देता तो मैं आपसे कभी ना कहती कि आपकी मसरूफ जिंदगी में मेरे बच्चों का भी कुछ हिस्सा। मगर कातिबे तकदीर ने तो फैसला कर लिया। अब आपको मुल्क मिल्लत की जिम्मेदारियों के साथ साथ मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे तीनों बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको अपनी आंखों से कभी ओझल ना होने दीजिएगा। वादा कीजिए सैयदा, वादा कीजिए, वादा कीजिए सैयदा। I'm sorry, Sayyid Sahib. She is no more. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un।
बच्चे तीनों छोटे हैं। सैयद अहमद, शादी कर लो। सैयदा जैसी शरीकी हयात मिल सकती है खालू जान मुझे? और बच्ची तो बहुत ही छोटी है, क्या करोगे? कैसे पालोगे? जिस परवरदिगार ने हामिद और महमूद और उस छोटी सी बच्ची को दुनिया में भेजा है, उससे बेहतर निगरां पालने वाला और कौन होगा? आप फिक्र मत कीजिए खालू जान, अल्लाह मददगार है। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अजीब सी 3 साल हो तुम, दूसरी शादी तो तुम्हें करना ही पड़ेगी। नहीं, कोई मजबूरी नहीं। मोहम्मदी बुआ मौजूद है, बच्ची इनसे मानूस है। देखो सैयद अहमद, तुम्हारी खाला मुस्तकिल बीमार रहती हैं, सफिया अपने बाल बच्चों में मसरूफ किसी दूसरे शहर में रहती है। घर में औरत का होना बहुत ही जरूरी है। खालू जान, मैं इस मौजू पे आपसे बात करना नहीं चाहता। सैयदा की मोहब्बत में आज ये बात कह रहे हो, 4 दिन बाद कल खुद ही किसी खानदान की लड़की का रिश्ता मांगने के लिए तैयार होंगे आप। बीवी से मोहब्बत का एतराफ है मुझे। सैयदा दुनिया में हो या न हो, उससे मोहब्बत करते रहना मेरी मजबूरी है। लेकिन आप इत्मीनान रखिए खालू जान, दूसरी शादी के लिए मैं किसी रिश्तेदार के घर पर दस्तक देने नहीं जाऊंगा। याद है सद अमीनी के दफ्तर में पहली मुलाजमत हमने दिलवाई थी तुम्हें। याद है मुझे खालू जान, और मैं ममनून हूं आपका। नौकरी नौकरी की तरह की जाती है, वहां लीडरी नहीं चमकाई जाती। हमने भी कल में क्या मैं लीडरी कर रहा हूं खालू जान? और ये जो तुम तरक्की तालीम हिंद बनाने के चक्कर में हो, ये अंग्रेज कभी नहीं मानेगा तुम्हारी इस बात को। अब तक जो सोचा है होता चला आ रहा है खालू जान। ये कोई कामयाबी की सनद नहीं कि मुरादाबाद में तहत का इंतजाम तुमने बड़ा उम्दा कर लिया, या बिजनौर में गोरों को बचाने के लिए सीना तान कर खड़े हो गए। ये गोरे जब तुम्हें बहुत आगे बढ़ता देखेंगे सैयद अहमद, ये तुम्हारे पांव तले से जमीन खींच लेंगे। खालू जान, आप मेरे बुजुर्ग हैं, किस तरह सोचते हैं आप मेरे लिए? अंजुमन तरक्की तालीम हिंद बनाकर रहूंगा मैं। हर अंग्रेजी किताब का उर्दू में तर्जुमा कराऊंगा और इसी हिंदुस्तान में छपवाऊंगा। साइंटिफिक सोसाइटी बना रहा हूं। साइंटिफिक सोसाइटी बना रहा हूं। दिल्ली के अंग्रेज अफसरान के लिए तुम्हारा नाम मौजूए बहस बन चुका है। खौफजदा है गोरा तुम्हारी इन कोशिशों से। होने दीजिए। कान खोल के सुन लीजिए, साफ कहते हैं बहुत मुतासिब है गोरा सैयद अहमद। यकीन है कि सारी बातें आप तक जरूर पहुंचती होंगी, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं कि कितने दुश्मन पैदा कर लिए हैं तुमने अपने सैयद अहमद। खालू जान, मैं तो दुश्मनों का दुश्मन नहीं। ऐसा बर्ताव करूंगा दुश्मनों से कि उसे दोस्त बनाने का मौका रहे, या कम से कम उसकी जरा से बचने की गुंजाइश जरूर रहे। आओ जय किशन। नमस्ते भाई साहब। आदाब जय किशन। जय किशन, ये मेरे खालू खलीलुल्लाह हैं। नमस्ते। खालू, ये मेरे दोस्त जय किशन तहसीलदार अलीगढ़ है। ये खत जरा देख लीजिए। जय किशन जिंदाबाद। वजीर हिंद ड्यूक ऑफ आर्गाइल ने मंजूर कर लिया है साइंटिफिक सोसाइटी का पैटर्न बनना। आसारुस सनादीद इंतखाबुल अखवीन, ये वो किताब है जो मुंसिफी के इम्तिहान के लिए सरकार इंग्लिशिया के निसाब में शामिल है। रिसाला असबाब बगावत हिंद, रिसाला मौसूम लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, रिसाला तहकीक तारीख फिरोज शाही, तसनीफ व तालीफ के इन कारहाय नुमाया के साथ सरकारी मुलाजमत के फराइज की बजाआवरी, और आज गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम।
इसके बावजूद आज के अहद का एक शख्स सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है। सैयद अहमद खां की जिंदगी गमों का तसलसल है, जिसके बारे में अरब के मशहूर शायर अबू तमाम के एक शेर का तर्जुमा सुनना सामईन जलसा के लिए निहायत काफी होगा। शायर अबू तमाम फरमाते हैं, जरा उस शख्स की जानिब निगाह उठाकर देखो, ये कैसे शौक से बुलंदी की जानिब चढ़ता जा रहा है कि इसे देखने वालों को गुमान होता है कि इसे आसमान पर कुछ काम है। तो आसमान पर चढ़ने वाली चीज हम कैसे दिखा देंगे? देखो क्या तमाशा हो रहा है। अरे सब क्या हो रहा है? अरे भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। गाजीपुर के मुअज़्ज़िज़ शहरियों, कर्नल साहब की इस जलसे में अचानक आमद का मैं बहुत ममनून हूं। साहिबों, आज का हिंदुस्तान 19वीं सदी के जिस हैरत अंगेज दौर में गुजर रहा है, 400 बरस जमी जमाई मुगलिया सल्तनत के खात्मे पर जिन हुक्मरानों के हाथों में हिंदुस्तानियों की तकदीर है, वो चंद हजार फरंगियों की सूरत में 20 करोड़ के हिंदुस्तान में मौजूद हैं। मेरी मुराद, मेरी नजर सरकार बरतानिया की हाकमियत पर नहीं, उनकी जदीद उलूम व फनून सियासत जहांबानी पर है। आज हमारे हाकिम रियाया की जरूरतों और रियाया की बेहतरी के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है। साहिबों, वो वक्त दूर नहीं जब हमारे मदरसगाहों में साइंसी तजर्बात होंगे और हमारे बच्चे इन नई जदीद उलूम व फनून के जेवर से आरास्ता होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और यूरोपियन साथियों की मदद से साइंटिफिक सोसाइटी वजूद में आ चुकी है। कल मेरे हमवतनों के एक हाथ में फलसफा होगा और दूसरे हाथ में साइंस, और सरों पर अल्लाह की यकताई का ताज होगा। खानादारी के मामले में तो आपकी तवज्जो और वक्त की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह हामिद मियाँ और महमूद मियाँ समझदार हैं। बस वो बच्चे की तबीयत नासाज है, तो मैं चाहता हूँ मियाँ कि आप बच्ची को सफिया के पास आगरा भिजवा दीजिए। डॉक्टर साहब आ गए हैं मियाँ। आपका लेफ्ट वाइफ का बीमारी की वजह से बच्चे में कुछ पैदाइशी कमजोरियां हैं। डॉक्टर साहब, हम तो वक्त पर बिटिया को दवा देते हैं, अल्लाह जानता है हम पल पल पे नजर रखते हैं। मोहम्मदी बुआ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? तीनों बच्चों के मामले में आपकी मोहब्बत को मैं जानता हूं। बच्ची बीमार है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। हम आपकी बेबी को अपने घर ले जाकर उसका बिल्कुल ठीक ठाक देखभाल करेंगे। हमारा वाइफ उसका बहुत अच्छा देखभाल करेगा। अंडरस्टैंड? डॉक्टर साहब, हमें पता है मेम साहब बच्ची का बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन देखिए हम भी बिटिया के साथ जाएंगे। क्यों नहीं, आप बिल्कुल जाएंगे। डॉक्टर नाइक,
میرے پاس شکریہ کے لیے الفاظ نہیں. سید صاحب شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا چاہیے، بیکاز بجنور کا وہ نائٹ ہم کبھی نہیں بھلا سکتا جس رات کو کسی یورپین کے بچنے کا کوئی امید نہیں تھا. نو ڈاؤٹ زندگی اور موت تو گاڈ کے ہاتھ میں ہے، لیکن گاڈ نے آپ کے تھرو ہمارا وائف کا اور ہمارے بچوں کا جان بچایا. ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں سید صاحب. تم بیبی کا سامان گاڑی میں رکھواؤ. اوکے. ایک تو آئے دن کے تبادلوں نے بچوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. غدر پڑا تو بجنور سے دلی، دلی سے میرٹھ، میرٹھ سے پھر دلی، پھر بجنور، مراد آباد، غازی پور اور اب علی گڑھ. میاں جان لیں یہ گورے یا تو آپ کی ترقیوں سے ڈر گئے ہیں یا پھر چڑ گئے ہیں. ٹکنا ہی نہیں دیتے آپ کو کسی شہر میں. تبادلے کا سن کر میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں چھجو خان. کیسی کیسی مصیبتوں سے سائنٹیفک سوسائٹی کے آلات جمع کیے. غازی پور میں دفتر کھولا، نہ جانے کیوں چھجو خان میرا علی گڑھ جانے کو خود بخود جی چاہتا ہے. اور جب علی گڑھ جانے کا سوچتا ہوں تو پریڈ گراؤنڈ میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. یہ میں نے تیار کرایا نقشہ. ایک عمارت یہاں پر ہوگی، ایک عمارت یہاں ہوگی مدرسے کی. یہ پورا باغ کا حصہ ہوگا. یہ جگہ وقف کی ہے میں نے مسجد کے لیے. انشاءاللہ مسجد تعمیر ہوگی. اور ہاں میں نے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر آنریبل ڈیمرٹ کو راضی کر لیا ہے. بہت خوب. واہ سید صاحب، بھیجے یہ کام آپ نے خوب انجام دیا کہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے گورنر صاحب کو جو مدعو کیا. کیوں نواب صاحب؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے. سمیع اللہ صاحب نے سید صاحب کے ہر کام مثالی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے. سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے اور اپنی نگرانی میں سوسائٹی کی یہ شاندار خوبصورت عمارت تعمیر کروا کے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. محنت مشقت کسی کام کو کرنے کی لگن دکھائی دے رہی ہے. مجھے امید ہے یہ انسٹیٹیوٹ ہندوستانیوں اور برٹشرز کی اچھی کاموں میں شرکت کی علامت بن جائے گا. سید احمد خود بھی یہی چاہتے ہیں. سائنسی تجاربوں کی کلاسز شروع ہو چکی ہے. یورپین سائنٹسٹ اپنے نگرانی میں کلاسز لے رہے ہیں. جے کشن، ارے بھائی یہ تمہارا سید احمد سے بھائی بندی والا یارانہ اب اپنوں کی برداشت سے باہر ہو گیا. ارے جب حویلی پہنچو تو پتا چلتا ہے کہ راجہ صاحب سائنٹیفک سوسائٹی گئے. گوروں کی ملازمت کرتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہ اپنوں کو برا کیوں نہیں لگتا؟ جے کشن وہ ہماری مجبوری ہے. تو پھر اسے ہماری اور سید احمد کی دوستی کی مجبوری سمجھیے. ارے بھائی، سید احمد انگریزوں کی دوستی کے چکر میں اپنے لوگوں کی ترقی پکی کر رہا ہے. ارے وہ کون ہوتا ہے اتر پردیش میں سرکاری زبان اردو بنوانے والا؟ ہندی شدھ بھاشا دیوناگری لکھائی
शर्मा जी, फिर मैं और आप तो लिखते और पढ़ते समय एक दूसरे को तका ही करेंगे। अरे बंगाल में रोशन ख्याल जैसी ब्रह्म समाज मूवमेंट के आप हिस्सेदार रहे। शर्मा भाई, उसे तो न झुठलाओ। और जो अब वो कोल में मुसलमानों के मदरसे की बात कर रहा है सैयद अहमद, वो क्या है? गलत, बिल्कुल गलत। उर्दू और अंग्रेजी मदरसे की बात चल रही है। अरे मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल नाम रखने तक की तो इजाजत नहीं दे रही है सरकार। शर्मा भाई, मैं और आप भी तो उर्दू और फारसी सीखने और लिखने के लिए मस्जिद में जाते रहे। मुसलमानों ने इससे पहले कभी हिंदू तलबा पर रोक लगाई है जो मदरसे में लगाएंगे? बस अब मैं तंग आ गई। देखो शर्मा भैया, भगवान की दया से पढ़े लिखे हो, हमारे सामने दंगे फसाद की बात मत किया करो हिंदू मुसलमान के बीच। हाँ तो नहीं, ये जो हम हर साल जाते हैं अजमेर शरीफ, कभी रोका है हमें किसी ने? हाय, कहाँ की बात को कहाँ ले गई हो सावित्री बहन। अरे वो ऋषि मुनि तो महान लोगत भगवान का अवतार है, परंतु सैयद अहमद तो बहुत बड़ा सियासतदान है। हमारे ब्रह्मों समाज ने अंग्रेजी तालीम और भाषाई की तो बात की थी, पर ये जवाब बैठा साइंटिफिक सोसाइटी। अशोक होता ना तो वो बताता तुम्हें, वो बताता कि कितना बैरी है ये हिंदुओं का। कौन अशोक? वो अशोक मेहता, वो मुरादाबाद में जो किलर था। तुम जानते हो? उसे नौकरी से निकलवा दिया सैयद अहमद ने। अरे वो तो हिंदू किलर देखना भी पसंद नहीं करता। अच्छा। रानी माँ जी, मेहता जी आए। अंदर भेजो जल्दी। जी शर्मा भैया। नमस्ते रानी माँ। नमस्ते, बैठो। हाँ भाई मेहता, मुलाकात है शर्मा जी से? नहीं राजा साहब, पहली बार दर्शन हुए हैं। बाकी बातें फिर होंगी। मेहता जी, तुम्हें भगवान की सौगत, सच्ची सच्ची बताओ, कैसा मनुष्य है सैयद अहमद? देवता समान है रानी माँ। जितने दिनों मुरादाबाद में क्लर्क था, राम जाने क्या हो गया था मुझे। क्या हो गया था? एक अनजाना सा बैर था दिल में। जिले का कोई बड़ा अफसर ऐसा नहीं था जिसको चिट्ठी लिखकर सैयद साहब की झूठी शिकायत न लिखी हो। हाय राम। फिर क्या हुआ? सैयद साहब की सारे इज्जत करते थे, जानते भी थे। मुझे तो दूसरे अफसरों ने निकाल दिया। शर्मा भैया, आपको पता है, गोरों को जरूरत थी एक लायक मुंशी की। सैयद अहमद ने अशोक मेहता जी को दुगनी तनख्वाह पे वहां लगवा दिया। एक बात तुम धर्म की बात करके इस अनजाने अनबूझे बैर को मन से निकाल दो। केवल पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसा है जो गोरे की आंख में आंख डाल के खरी बात कह सके। हीरा है, हीरा मनुष्य है सैयद अहमद। भाई छापा खाना मेरा अपना है, मैं किसी को बख्श दूं या दीवारें ढा दूं? आप मुझे मशवरा देने वाले कौन होते हैं? अपना घर कर्जे पर चल रहा है, तनख्वाह सारी की सारी साइंटिफिक सोसाइटी की नजर। एक छापा खाना था, सो वो भी बख्श दिया। और वो बेगम भोपाल सिकंदर बेगम ने हीरे की अंगूठी और 1000 रुपए नकद भेजे थे इन्हें सैयद अहमद को, वो भी बख्श दिए। मियां समझते क्या हैं आप अपने आप को? आसमान से मनो सलवा उतरेगा क्या आपके और आपके बच्चों के लिए? भाई ये बैठे हैं मेहंदी अली, दुआ मांगो मेहंदी अली, उतरवाओ मनो सलवा एक नाकारा नेचरी सैयदजादे के लिए। भैया हमारे समीउल्लाह तो हमारे लिए दुआ भी नहीं करते। वैसे आज आपका मिजाज इतना बरहम क्यों है? फतवा गलत दे दिया या कोई? जाड़ा सर पर है, बच्चों के पास गर्म कपड़े तक नहीं है, और ये अपना छज्जू ये बेचारा अलग परेशान है। अपना पैसा हो तो सोसाइटी,
तोहफा है तो सोसाइटी। और आप भी जरा गौर से सुन लें बिहारी लाल, अब जो सैयद साहब रकम आपके हवाले करेंगे वो आप मुझसे पूछे बगैर सोसाइटी के रजिस्टर में नहीं लिखेंगे। हिसाब रजिस्टर में न लिखें या बता के दें, दोनों सूरतों में नाराज होते हैं सैयद साहब। वहाँ एक ही जगह हिसाब देने में बड़ी तकलीफें परेशानियां होंगी। अब मैं दुनिया में हिसाब देने और लेने से तो रहा, क्यों नवाब साहब ठीक कह रहा हूँ? चंदा चाहिए सोसाइटी के लिए? फकीर मौजूद है नवाब ज़ियाउद्दीन खान ऑफ लोहार। भाई सैयद साहब, चंदा तो हम आपको दे देंगे, लेकिन एक शर्त पर कि वो चंदा आप अपनी सोसाइटी पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई चंदा तो दीजिए। ठीक है, घर जाके भिजवा दूंगा। साहिल का बड़ा हुआ हाथ खाली रखना मुसलमानों का शेवा नहीं है। चलिए साहब, भाई इस वक्त तो सिर्फ 50 ही होंगे। ये ले मियां बिहारी लाल, संभालें। जज़ाकल्लाह। लाइब्रेरी के लिए किताबों का पार्सल आया हुआ स्टेशन पर पड़ा है, 85 रुपए काफी होंगे। भाई शहनशाह हिंद ने आपको खिताब खूब दिया था, जवादुल मुल्क। जीते रहो मेहंदी अली। भाई हम अपने खिताब का इस्तेमाल भी सही कर रहे हैं। सैयद साहब जाएंगे नहीं आप स्टेशन? वो आज अपने हामिद और महमूद का 10वीं का नतीजा भी तो आने वाला है। चलते हैं जय किशन, चलते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आइए आइए सैयद साहब, तशरीफ लाइए। ठहरिए सैयद साहब, ठहरिए। बधाई हो, जीत गए हम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर इंडियंस। इस खूबसूरती से आपने हुकूमत का घेराव किया है कि आज हमारे स्कूलों के बच्चे स्कॉलरशिप पर विलायत जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे महमूद को स्कॉलरशिप मिल गया विलायत का। आपके तालीमी जिहाद का दूसरा समर। आज हिंदुस्तानी बच्चे तहसील इल्म के लिए सरकार बरतानिया की सरपरस्ती में एक नया सफर शुरू कर रहे हैं। मियाँ मुबारक हो, लेकिन मियाँ वो महमूद मियाँ अकेले विलायत कैसे जाएंगे? हम और हामिद भी लंदन जाएंगे। कुछ खर्चे का विलायत का इल्म है सैयद साहब आपको? घर भेज दूंगा जय किशन। और फिर वापसी? जिंदगी रही तो रहने को छत मिल जाएगी। लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या जानता है ये यूरोपियन विलियम म्योर मेरे नबी की जिंदगी के बारे में? कल के पार्सल में आई थी ये किताब। जी समीउल्लाह साहब, रात भर पढ़ता रहा हूं। लंदन जाऊंगा और देखूंगा म्योर साहब के तारीखी हवाले और जवाब दूंगा उनकी गुस्ताखियों का। सैयद साहब, मुझे बड़ा रंज हुआ ये सुनकर। हमें मुसलमानों को गुलामी का एहसास दिलाना चाहते हैं ये नाम नेहाद फरंगी दानिश्वर। हमारी सल्तनत, इज्जत, आबरू जाने लेकर भी इनका इंतकाम ठंडा नहीं हुआ। इमारतें छू छू के देखते हैं ये। इस मुफलिस कौम के मेले ठेले रिच कल्चर का शोर मचाने लगे हैं ये। हमारे आलिमों को देख के खौफजदा हो जाते हैं वो। हजारों सजाएं मुसीबतें काटने के बावजूद दीन बेचने के बजाय मुसलमान जान देने को तैयार हो जाता है। हिंदू अगर मसलत के खातिर सर झुका लेता है, लेकिन धर्म से हाथ खींचने के लिए वो भी तैयार नहीं। जिद कर दिया है हिंदुस्तानियों ने इन्हें। मैं जाऊंगा और वहां जाके देखूंगा उनके मदरसे, उनके तालीमी यूनिवर्सिटियां, उनके कॉलेज, और इंशाअल्लाह उसी तर्ज पर आनकर अलीगढ़ में मैं तामीर करूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और खुदा ने चाहा वो दिन दूर नहीं जब यूरोपियन तालिब इल्म स्कॉलरशिप लेकर हमारे तालीमी इदारों में आएंगे और उन्हीं के असातिज़ा हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। लगा दीजिए खबर,
समीउल्लाह साहब साइंटिफिक सोसाइटी के अखबार में कि सैयद अहमद लंदन जाएगा और विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब लिखेगा। दिन के समंदरी सफर के बाद लंदन पहुंच गया हूं। मैकलेनबर्ग में ठिकाना मिला है। वैसे समीउल्लाह खान साहब, ये 5 आदमियों का विलायत में खर्चा खासा महंगा नहीं पड़ जाएगा सैयद साहब को? अरे किशन जी, मिर्जा खुदादाद बेग को साथ ले जाना निहायत जरूरी था। दरअसल अपने सैयद साहब अंग्रेजी बोलने में जरा दिक्कत महसूस करते हैं और फिर वो छज्जू को बच्चों की वजह से साथ ले जाना पड़ा। लेकिन साहब, लॉर्ड लॉरेंस ने जिस तरह पिजिराई की है सैयद साहब की, भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, हमारी तो तबीयत खुश हो गई। दरअसल आपने खत पढ़ा नहीं है। जी जी। अगर तुर्क मुसलमान गर्दन मरोड़ी मुर्गी खाते हैं तो हम क्या करें? यहां हिंदुस्तान में तो लोग मौलवी हजरात हमारे पीछे लठ लेकर पड़ जाएंगे, जिहाद शुरू हो जाएगा। वाह साहब वाह। सो तो है। खत क्या है, पूरा का पूरा सफरनामा है। अरे भाई सुनो, ताजा कलाम सुनो। सिधारे शेख काबे को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे। मौलवी सबीउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। मौलवी सबीउल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारी जान का मुहाफिज। तुम्हारा दोस्त CSI खिताब याफ्ता हो गया है, तमगा भी मिला है। खबर है कि मलका मुअज़्ज़मा और प्रिंस ऑफ वेल्स से भी मुलाकात होगी। ये लीजिए, सादिर होने लगे फतवे। सैयद अहमद हराम हलाल की तमीज उठाकर अंग्रेजों का हम निवाला और हम प्याला बन गया। वाह साहब वाह, ये भी खूबी हुई। अमन नवाब ज़ियाउद्दीन साहब, डिनर लंच, भला कौन समझाए लोगों को? अपने सैयद अहमद न तो शराब पीते हैं और न ही खंजीर के गोश्त खाने को जायज समझते हैं। तो इसमें ऐसी परेशानी की क्या बात है मौलवी साहब? आप सफरनामे में से काट दिया करिए ऐसी बातें, मत छापा करें। अब देखिए ना आप, हद हो गई है। सैयद अहमद ने बिला खौफ व खतर मजहबी तनकीद का आगाज कर दिया है। भाई साफ बात है, अखबार की फरोख्त इतनी बढ़ गई है कि मेरे लिए तो इसका छापना बहुत मुश्किल हो गया है। ईसाई हो गए ईसाई, सैयद अहमद खान। अरे नाम देखो और हरकतें देखो उनकी। गोलियां देखो, रग भर की शरई दाढ़ी लगाए हम सबको धोखा देने की कोशिश करता है। सुनो, अपने अली बख्श साहब सैयद अहमद की गर्दन उड़ाने का फतवा लेने मक्के मदीने गए हैं। हाँ, तो ईसाई बन के मुर्शिद नहीं हो गया? ईसाई साहब, जमा कीजिए हिंदुस्तान के उलमा को, ताकि विलायत से वापसी से पहले उलमा के फतवे हासिल किए जाए। बिल्कुल, शोर ही मचाते रहोगे या बात भी सुनोगे मेरी? सुनाए। आप लोग ईसाई गलत समझ रहे हैं। लफ्ज है CSI, ये उर्दू की तरह अंग्रेजी जबान के हुरूफ ताजी है। मुखफ़्फ़फ़ है ये हुरूफ अल्फाज का। लफ्ज ईसाई नहीं है, CSI है। खिताब है अंग्रेज सरकार का। हाँ, तो ये लोग जो कह रहे हैं कि सैयद अहमद ईसाई हो गया है,
تو کیا آپ بلا سوچے سمجھے کہہ رہے ہیں؟ نہیں ماریں گے سید احمد خان کو، مزاجی ہنگامہ آرائی ہے. ارے بھائی میں سید احمد کا بھاٹ نہیں ہوں، اگر وہ پیر ہوں تو مرید نہیں ہوں میں ان کا. میں تو خود سید احمد کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہوں، ان کے بعض عقائد کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بعض خوبیوں کا بھی معترف ہوں کہ سید احمد بزدل نہیں ہے، مکار نہیں ہے، منافق نہیں ہے. قوم کی بھلائی کے نشے میں ایسا سرشار ہے وہ شخص کہ اپنی پگڑی تو کیا دوسروں کی پگڑی اتار کر بھی مسلمانوں کے سر پر سجا دے گا. لکیر پیٹے جا رہے ہیں، سمجھتے ہی نہیں بات. کل کیمبرج گیا تھا. تعلیمی اداروں میں عمارت کی عظمت کا خیال رکھنا مسلمانوں کا کام رہا ہے، جو ہم برسوں سے چھوڑ چکے ہیں. کیمبرج کی طرز تعمیر اور طرز تعلیم کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ مجھے واپسی پر ایسا ہی ادارہ تعمیر کرنے اور چلانے میں بہت آسانی ہوگی. سال بھر سے زیادہ رہا یورپ میں، جلد واپسی ہوگی. حامد میرے ساتھ واپس آ رہے ہیں. محمود لنکنس ان کے ہاسٹل میں، اور اب انشاءاللہ بیرسٹر بن کر ہی ہندوستان واپس آئیں گے. اخبار کی لو ٹائپ دونوں لندن میں تیار کرائے ہیں میں نے. اچھا، بہت خوب بہت خوب. اب ہم سب مل کر بہت جلد اخبار تہذیب الاخلاق جاری کر دیں گے انشاءاللہ. مدرسہ، اقامت خانوں، لائبریری، کھیل کے میدانوں، باغات کے ساتھ کیمبرج کی جدید طرز پر تعمیر کراؤں گا میں. بہت خوب. لیکن وہ سید صاحب پریڈ گراؤنڈ کا سن کر حکومت ہند سخت مخالفت کر رہی ہے. میرے دوست جے کشن، اب مجھے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں. میں انشاءاللہ بنارس سے واپسی پر آن کر تعمیر شروع کراؤں گا. ہاں، بنارس پر مجھے یاد آیا کہ وہاں ولیم شیکسپیئر آپ کے منتظر ہیں. کیا کہنے ہیں، ان کی پوسٹنگ وہاں ہو گئی. جی صاحب. What a surprise! مسٹر سید احمد، کتنا عجیب بات ہے کہ آج میں، آپ اور گراہم ادھر بنارس میں اکٹھے بیٹھا ہے. میں کتنا خوش ہوں آپ کا تبادلے کا سن کر. ہاں، پورا 1 سال 5 مہینہ تم نے ادھر لندن میں گزارا. میں آپ کا مصروفیات کے بارے میں نیوز پیپر میں پڑھتا تھا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی کون سا خبر پڑھ کے ہوا ہوگا؟ لارڈ کنگ فارن سیکرٹری کی ملاقات سے. بالکل صحیح، تم صحیح گیس کیا. موصوف مجھے کارنر کرنا چاہتے تھے اسباب بغاوت لکھنے کے الزام میں. پھر بولے، یس مسٹر سید، تم گورنمنٹ کا ملازم ہوتے ہوئے کتاب لکھنے سے پہلے گورنمنٹ سے پرمیشن کیوں نہیں لیا؟ تم نے بغیر گورنمنٹ کے حکم سے
500 किताबें इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया? They wanted to dismiss him. ये वो लोग आपको हटाना चाहता था। मैं समझता हूं ग्राम। मैंने भी उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, पार्लियामेंट की लाइब्रेरियन से पूछकर आपको ये बात मुझसे कहनी चाहिए थी। 496 किताबें मैंने इंग्लैंड भेजी। एक किताब इंडिया के वासराय हिंद को दी, दूसरी मैंने अपने जिले के कमिश्नर को, तीसरी किताब शुमाल मगरिबी इलाके के गवर्नर को, और चौथी ये मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है। सैयद अहमद इधर है। Why don't we discuss the problem raised by the father of Shardhan? मुझे खबर है ग्राहम, आर्य समाज वाले शुद्धानंद की पुष्पर हैं। ये 2 जमानों का मसला है, बहुत आगे जाएगा। सरस्वती को शुमाली हिंद में तो कामयाबी हुई नहीं, वो अपना सियासी बखेड़ा उठाकर पंजाब चले गए। अलेक्जेंडर, ही इज राइट, आप सही बोलता। इन 2 कौमों को, जिनमें से हर एक दूसरे के लिए नाकाबिल तस्खीर है, एक ही ताकत है ज़बान जो इनको मुत्तहिद रख सकती है, और ये उसी के पीछे लट लेके घूम रहे हैं। What do you think, सैयद अहमद? इस सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा? ये दोनों कौमें साथ नहीं रह सकती। मेरा और आपका दोस्ती को कई साल हो गया है, और आपने आज तक हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग करने वाला अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। आप तो मुझे जानते हैं शेक्सपियर साहब, मैं सच बोलता हूं और कुछ नहीं। वो तुम्हारा मदरसे का क्या बना? अब मैं यूरोप से वापस आ गया हूं, मेरा पहला काम ही मदरसे का आगाज है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तेरा है आसे भी जहाँ होगा, दारुल इल्म सद तेरा है आसे भी जहाँ होगा, इसी दारुल शिफा में वक्त पीर अपना जवां होगा, इसी दारुल शिफा में वक्त पीर अपना जवां होगा। हमारा मदरसा घर है ये इल्मो दीनो हिकमत का, हमारा मदरसा घर है ये इल्मो दीनो हिकमत का। अगर होगा इसी घर से बुलंद अपना निशान होगा, अगर होगा इसी घर से बुलंद अपना निशान होगा। मेरे दोस्तों और तालीमी मिशन के मुजाहिदों और सिपह सालारों, मंजिल अभी दूर है, लेकिन कारज़ार इल्म में आपके सफर का आगाज हो चुका है। एक वक्त था सैयद अहमद तन्हा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इल्म और कलम की पूरी रेजिमेंट है। जिनके हाथों में तालीमी मशले हैं। मौलवी समीउल्लाह, अलेक्जेंडर शेक्सपियर, नवाब जियाउद्दीन खान ऑफ लोहारो, नवाब जैनुल आबदीन, नवाब लुत्फ अली खान ऑफ छतारी, राजा जय किशन, मास्टर प्यारे लाल, सैयद जकाउल्ला, सेठ धर्म नारायण और सर विलियम म्योर। ये दारुल इल्म इस्लामी अखुवत की, हम उससे बदगुमान होंगे जो इससे बदगुमान
لائیے آئیے. السلام علیکم سید صاحب. السلام وعلیکم السلام. جی میں خادم جانتا ہوں تشریف رکھیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. شکریہ. الطاف حسین حالی میں تم کو جانتا ہوں محترم نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے حوالے سے اور اپنے بزرگ چچا اسد اللہ خان غالب کے حوالے سے. آپ کی شاعری دیکھی, نثر دیکھی. آ جائیے استادی کے لیے مدرسے میں یا پھر تہذیب الاخلاق سنبھال لیجیے. تہذیب الاخلاق ہی میں تو میں آپ کے خلاف یا موافق مضمون لکھ کر آپ تک پہنچا ہوں سید صاحب. بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے اس رسالے سے وابستگی. ڈرتے کیوں ہو؟ وہ باغے دوحل کا ہو. سید احمد دشمن اسلام ہے, فرنگی کا اثر خرید ہے, اسے مسلمان کہنا مسلمانوں کی توہین ہے. دشمن دین سید احمد 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 سید احمد دشمن دین سید احمد دشمن دین سید احمد دشمن دین سید احمد دشمن دین سید احمد دشمن دین. زندہ دلانے پنجاب, سلام کرتا ہوں آپ کی فراخ دلی اور وسعت نظر کو. جس وقت میرے اپنے ضلع کے لوگوں کے ہاتھوں میں میرے لیے پتھر تھے, آپ کے ہاتھوں میں پھول اس وقت بھی تھے. کیا ہندو, کیا مسلمان, کیا سکھ اور کیا حکومت انگلستان کے حکمران و افسران, کس نے سید احمد کا ساتھ نہیں دیا؟ ہندوستانیوں, خاص طور سے مسلمانوں کی جدید تعلیم اور ترقی کے لیے اہل پنجاب جو کچھ کر رہے ہیں وہ میرے لیے باعث فخر ہے. ایک وقت تھا جب میں کہتا تھا کہ ہندوستان ایک حسین تر محبوبہ ہے. ہندو مسلمان دونوں کی یہ دونوں قومیں اس سرزمین پر دو خوبصورت آنکھیں ہیں. ایک آنکھ اگر پھوڑ دو گے تو کیا دکھائی دے گا ہندوستان کا خوبصورت چہرہ؟ کچھ لوگ میری بات سمجھے, کچھ نہیں. جو لوگ میرے خلوص کو نہیں سمجھ سکے ہیں, آنے والا وقت ان کو سمجھا دے گا. میرے بھائیوں, میرے مخلص دوستوں, اور میری محنت اور لگن سے تعلیم اور تدریس میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے. ہمارا اگلا قدم محمدن اورینٹل کالج کے قیام کا تھا. اپنے اس تعلیمی ادارے کے معاملے میں محمدن کے نام پر زور میں اس لیے دیتا رہا کہ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے میرے تمام ہم وطنوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ دین اسلام دنیا کے ہر مذہب کے احترام کا حکم دیتا ہے. نام محمدن ضرور ہو مگر مدرسے کے مدرسین اور طلبہ ہندو اور مسلمان بھی ہوں گے, پارسی, سکھ, عیسائی اور یہودی, بدھسٹ بھی. آج ہمارے مدرسے اور کالج میں ہندو, مسلمان, عیسائی سب طرح کے مدرسین کام کر رہے ہیں. یہی کیفیت طلبہ کی بھی ہے. ذرا سارے کے سارے بلند آواز سے راجا جے کشن کی جے کا نعرہ تو لگائیں.
राजा जय किशन की जय। आप तो बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूं। जब मैं पहली बार इंग्लिस्तान गया था तो बहुत से काम अधूरे छोड़कर इस बहादुर और मुखलिस दोस्त राजा जय किशन पर डाल गया था। और जब वापसी हुई तो न सिर्फ ये कि साइंटिफिक सोसाइटी चल रही थी, बल्कि कई इमारत का काम भी मुकम्मल हो चुका था। हमारे दोस्त ग्राहम साहब भी हक के मोहब्बत अदा करने में पीछे नहीं रहे। सर विलियम म्योर, जिनके बारे में मेरे जहन में कुछ गलत फहमियां थीं और मैं इस कदर जज्बाती था कि महमूद की विलायत की तालीम तो रही एक तरफ, मैं सारा असासा बेचकर म्योर साहब की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब लिखने के लिए इंग्लिस्तान चला गया था। ये मिस्टर ग्राहम का कारनामा है कि जैसे ही मेयर साहब की शुमाली मगरबी हिंदुस्तान में सरबराह जिले की हैसियत से तबादला हुआ, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज में तालीम का आगाज हो गया। मेयर साहब मेरे मेहरबान दोस्तों में शामिल हो गए हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन है। हिज एक्सीलेंसी राइट ऑनरेबल एडवर्ड रॉबर्ट लिटन GMSI वासराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक इनायतनामा मौसूल हुआ है। मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की इस नई इमारत का संग बुनियाद रखने के लिए जो मैं कैम्ब्रिज की तर्ज पर बनवा रहा हूं, वासराय 8 जनवरी को खुद तशरीफ लाएंगे। वायसराय बहादुर के दफ्तर से तमाम रियासतों और अहम शख्सियात को दावतनामे जारी हुए हैं और हिंदुस्तान के उन तमाम मोहतरम वालियान रियासत और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को जो इस मदरसे के सिलसिले में पहले भी हमारी मदद किया करते थे, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के लिए फयाजाना अतियात का ऐलान किया है, जिनकी फहरिस्त मौलवी साहब के पास है। जी मौलवी साहब। सबसे पहला नाम तो खुद बानी मदरसा जनाब सैयद अहमद खां का है। जिनकी हस्ती ने जिंदगी की हर दौलत तालीम पर कुर्बान कर दी। फिर निजाम दक्कन हिज एक्सीलेंसी मीर उस्मान अली खां 90,000 रुपए। GCSI सर महाराजा राव राजा महेंद्र सिंह महेंद्र बहादुर 58,000 रुपए। महाराजा बनारस महाराजा विजयनगरम सालार जंग बहादुर हैदराबाद दक्कन, नवाब कल्बे अली खां ऑफ रामपुर और नवाब लुत्फ अली खां ऑफ छितारी। The greatest and the most enduring conquest of Mohammedan races have all been achieved in the fields of science, literature, and art. Not only they given the great portion of this continent and architecture, which is still the wonder and the admiration of the world. फिर इस शिकस्ता कौम का गमखार
سید قیام زندگی لے کر نقیب آگہی بن کر شب تاریک میں آیا سفیر روشنی بن کر. بھائی کیا ہو رہا ہے حافظ جی؟ آپ نے تو ساری کیاریوں میں جنت کا سما پیش کر دیا. ارے ہم تو سارے علی گڑھ کو گلزار بنا دیتے. آج چھتاری والے نواب لطف علی خان بھی مدرسے کے باغیچے میں تشریف لائے تھے. علی گڑھ کو گلزار بنا دیتے تو بنا دیتے. علی گڑھ کو گلزار کس نے منع کیا تھا آپ کو؟ ہم ناراض ہیں آپ سے. کیا قصور سرزد ہو گیا؟ آپ نے سارے مدرسے کالج میں جانے کہاں سے بلا کے ہندو مسلمان انگریز سب کو نوکریاں دے دی. بھائی تو آپ بھی تو مدرسے میں ہی کام کر رہے ہیں. ہمیں سرکار کی نوکری چاہیے تھی. تو روہتک میں تو آپ کی ملازمت ہے. یہاں تو کبھی کبھی آن کر آپ ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں. اگر آپ نہ مدد کریں تو ہمارا گزارا کیسے ہو؟ اچھا تو بڑی تنخواہ کی نوکری چاہیے آپ کو؟ اور کیا، 45 برس سے ساتھ ہیں آپ کے، اور آپ ہیں کہ معاملات کو سمجھتے ہی نہیں. بھائی بڑے بدخط و حافظ عبد الرحمان خوش خط ہو بھی نہیں سکتے. کیوں؟ بس صورت خوش نفیس ہو بھی نہیں سکتا. آپ تو بڑے وجی ہیں، آپ کیوں بدخط ہیں؟ دیکھا ہے ہم نے آپ کا لکھا. بھائی کون سی وجاہت دیکھ لی آپ نے مجھ میں؟ رسولی لیے ہوئے اپنی داڑھی کے پیچھے گھومتا رہتا ہوں. اب جب بدصورت ہو گیا ہوں تو خط کیسے اچھا ہوگا میرا؟ وہ سر سید کے جس نے لے بدل ڈالی زمانے کی، وہ جس نے خون سے لکھی نئی سرخی فسانے کی، نہ اس کو ہوش تھا دل کا، نہ اس کو فکر تھی تن کی. وہ سید ہی تھا جس نے آدھیوں میں شمع روشن کی. سنا الطاف حسین علی، سنا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سبحان اللہ. مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، سبحان اللہ. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، بے شک. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، بے شک. فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. سبحان اللہ. سبحان. خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بے شک. مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا. سبحان اللہ. سبحان. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. سبحان اللہ علی، سبحان اللہ. تم نے تو میرا خواب شرمندہ تعبیر کر دیا. نہیں نہیں سید صاحب، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں اس ناچیز کو؟ میری یہ مسدس تو آپ ہی کے حسن التفات کا نتیجہ ہے. نہیں خواجہ الطاف حسین علی، نہیں. یہ آپ کا مجھ پر براہ راست احسان ہے. میں نے تو اس دنیا میں کچھ نہیں کیا، بس یوں ہی مارا مارا پھرتا رہا. نہیں نہیں سید صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنی پوری کی پوری زندگی قوم کے لیے وقف کر دی،
रोजो शब के एक एक लम्हे का खून कर डाला आपने कौम की खातिर। नहीं नहीं अली, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुम्हारी इस किताब के बाद मुझे अपनी कोताही अमल का एहसास नहीं होगा और क़यामत के दिन दावरे महशर मुझसे पूछेगा कि सैयद तुम हमारे लिए दुनिया से क्या लाए, तो मैं बारगाहे जुल जलाल में कह दूंगा कि अल्ताफ हुसैन हाली से मद्दे जदर इस्लाम लिखवा के लाया। बस यही मेरा अमलनामा है सैयद साहब। यही मेरा नहीं सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब। वो कहता था, वो कहता था कि हिकमत गुमशुदा जागीर मोमिन है, यही है ख्वाब आदम का, यही ताबीर मोमिन है। मकतब के ज़ेरे साया हो इंसान पलते थे, अमल पे हम का नारा लेके जो घर से निकलते थे, यही सीखा था, यही सीखा था तो कौमी नजरिए का सबक